Hey learners, this is Dr. Rishi from the Learners Academy, and today we are going to talk about solving word problems based on distance, speed and time. In the previous 3 videos, we had taken care of solving numerical problems or solving word problems on finding an unknown number, on work and time, and on geometric figures. Today's topic is going to be slightly interesting because there is one more thing that has been added to the things that we have studied so far. What is this thing? This thing is conversions, something very important, because here we are going to convert the speeds and the distances. So it is going to make things slightly complicated, because when we have speeds given in meters per second and when we have speeds given in kilometers per hour, things look completely different. So let us see what is the algorithm to solve this particular kind of problems. So the first thing we have to do, like we did in the last 3 sections, is read the problem correctly. Reread it one more time to assure yourself that whatever you have understood is correct. Second thing is conversion, something very important. So we have to check out if all the units are same. If they are not same, make them same. So if it's time, it either needs to be hours throughout or minutes throughout or second throughout. So all the variables should either be measured in hours or minutes or seconds if it's measuring time. If we are measuring distances, all the units either should be measured in kilometers or meters. You can't do it as आधों को किलोमीटर में गिन लिया, आधों को मीटर में गिन लिया, 100% गलती होने वाली है. स्पीड का भी सेम है. स्पीड का और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज स्पीड में 1 किलोमीटर पर आवर इज नॉट इक्वल टू 1000 मीटर्स पर सेकेंड. उसका एक डिफरेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. एट द सेम टाइम कई बार ये लोग ऐसा भी बताएंगे कि सब कुछ मीटर्स और सेकेंड में दिया है, एंड देन दे विल बी टेलिंग यू फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर. सो यू शुड हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड वेयर इफ the speed is asked in kilometers per hour, you would be giving it in kilometers per hour. You would not be stopping at meters per second only. I have seen many students losing half mark, at times even 1 mark, for not writing it in the particular unit that has been asked in the question. So ये भी चीज है जिसके ऊपर अपने को ध्यान देना है. So second thing आएगा conversions, then third thing आएगा forming quadratic equations, और फोर्थ आएगा सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो ये 4 चीजें होंगी, ये 4 स्टेप होंगे. उसके बाद विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर, विल बी राइटिंग द आंसर इन फुल सेंटेंस, एंड दैट वुड बी इट. सो विदाउट लूजिंग एनी टाइम, लेट अस क्विकली गो अहेड एंड चेक आउट व्हाट दीज एग्जांपल्स आर गोइंग टू. So today, let's go ahead and discuss these sums that are the problems that are related with distance, time and speed. Now these are the most complicated problems for majority of the students, including the CBSE and the state board students. So this particular video is kind of combined for all the students. Everyone can get quite a bit of information and techniques to solve quadratic equations based on distance, time and speed. So first we are going to solve a solved example, which is solved example 7. By increasing the speed of a car by 10 kilometers per hour, the time of journey of a distance of 72 kilometers is reduced by 36 minutes. Find the original speed of the car. अब इधर पंगे क्या होते हैं ये वाले पर्टिकुलर सेक्शन में, तो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइम समटाइम्स इज गोइंग टू बी गिवन इन मिनट्स एंड स्पीड बहुत ज्यादा टाइम किलोमीटर्स पर आवर में दिया जाएगा.
एंड डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया जाएगा। तो ये अपने को मैनिपुलेट करना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो let the original speed of the car be x. So the time taken to cover 72 kilometers would be x by c, because time is equal to distance upon speed. So the new speed of the car would be x plus 10. So what would be the new time? So it would be 72 upon x plus 10 hours. अभी देखो दोनों जगह पे अपन ने hours लिखा है टाइम में, अगेन क्रूशियल। सो द टाइम रिड्यूसेस बाय 36 मिनट्स। अभी 36 मिनट्स है, मिनट्स में थी अगे, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। तो कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 60 करके। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो दीज गेट क्रॉस मल्टीप्लाइड, सो वी गेट 72 टाइम्स x plus 10 minus 72 times x upon x times x plus 10 is equal to 6 upon 10. तो मल्टीप्लाई आउट करेंगे तो आ जाएगा 72x plus 720 minus 72x divided by x times x plus 10 is equal to 6 upon 10. और मोटा मोटा ये कैंसिल हो जाते हैं यहीं पर, so we cross multiply it and we get 7200 is equal to 7200 is equal to 6x times x plus 10. So we can write the final equation as 6x square plus 60x minus 7200 is equal to 0. So we can divide these numbers again further. So 6 से डिवाइड कर सकते हैं इनको अपन डायरेक्टली। तो अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। तो अभी 1200 के फैक्टर्स निकालने मेरे को, दो फैक्टर्स निकलेंगे। द एडिशन शुड बी सॉरी, इधर 10 आना चाहिए, 10x नॉट 1x, जस्ट करेक्ट इट। तो डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो प्लस 10x होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है ये, प्लस 40 और माइनस 30, ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे मेरे। तो मेरा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इज इक्वल टू 0, गिविंग मी x टाइम्स x प्लस 40 माइनस 30 टाइम्स x प्लस 40 is equal to 0, or we get x minus 30 times x plus 40 is equal to 0, finally giving me x is equal to minus 30 or plus 40. It's a speed, cannot be negative, so we discard this answer and we get x is equal to 30. So the original speed of the car would be 30 kilometers per hour. Quickly make a note of this. Then we'll go ahead with the next example. So we have the speed of an ordinary train is x kilometers per hour and that of an express train is x plus 25 kilometers per hour. Find the time taken by each train to cover 30 kilometers. If the ordinary train takes 2 hours more than the express train, calculate the speed of the express train. So first we have speed of ordinary train, we keep it as x kilometers per hour. Speed of express train as x plus 25 kilometers per hour and distance is 300 kilometers. Now we have to find the time taken. So time taken is what? It is distance upon speed. So we get for the ordinary train it would be 30 or 300 upon x hours, and for the express train it would be 300 upon x plus 25 hours. Now what is given? The ordinary train takes 2 hours more. So effectively I can write for the second part I can write the difference between the time is 2 hours. So ज्यादा टाइम किसको लग रहा है? ऑर्डिनरी ट्रेन को, इसलिए उसको पहले लिखा है. So it is 300 upon x minus 300 upon x plus 25 is equal to 2.
दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन वी एडेड देम अप एंड वी गॉट, तो इसको 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300x प्लस 7500 माइनस 300x वुड बी अपॉन x टाइम्स x प्लस 25। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज ये भी हो जाती है कि ये जो x वाला फैक्टर है ना वो कैंसिल आउट हो जाता है। सो ये कैंसिल आउट हो गया, इसको सीधा उठा के दूसरी साइड में डाला, वी गेट 7500 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 50x, गिविंग मी 2x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। We divide everything by 2, we get x square plus 25x minus 3750 is equal to 0. Now, अभी इसको फैक्टराइज करना है, एडिशन होना चाहिए प्लस 25, तो ऑब्वियसली एक नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा, बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नंबर नेगेटिव होगा। वाई? बिकॉज इट्स प्लस 25। तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज 3750। अब ये 50 के मल्टीपल्स है तो काफी इजीली कर सकते हैं अपन इसको। पहले वाले में कॉमन है x, तो वी गेट x टाइम्स x प्लस 75, दूसरे वाले में कॉमन है 50, सो वी गेट 50 टाइम्स x प्लस 75 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट x प्लस 75 टाइम्स x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो x इज ईदर इक्वल टू 75 और x इज ईदर इक्वल टू 50। नाउ द स्पीड cannot be negative, so x is equal to 50, so therefore speed of the express train is x plus 25, so it is 75 kilometers पर आवर। तो स्लो वाली ट्रेन का 50 किलोमीटर पर आवर है और फास्ट वाली का 75 किलोमीटर पर आवर। आगे देखेंगे द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन, अभी एरोप्लेन के पास जा रहे हैं, इज रिड्यूस्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 20 मिनट्स मोर टू कवर 1200 किलोमीटर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। हाँ, ये भी थोड़ा लॉजिकल, काफी लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं कि आप कौन से व्हीकल का स्पीड देख रहे हो। तो अगर ट्रेन का या कार का स्पीड है तो वो 100 के करीब रहेगा, मैक्सिमम 100 जा सकता है, 120 जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ट्रेन्स का, कार्स का 80 के आसपास रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। प्लेन्स का होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, वो 100 के ऊपर होगा। तो अगर आप, इट्स अगेन अ प्रो टिप दैट वी यूज व्हेन वी आर फिगरिंग आउट द स्पीड्स ड्यूरिंग द एग्जाम। अपना अगर अपने कार का स्पीड अगर 120 के ऊपर आ रहा है तो जरूर उसमें कोई गड़बड़ है, वापस जाओ चेक करो कहीं एक आध एक्स्ट्रा जीरो ऐड नहीं हुआ है ना। सो ये वाले एग्जांपल पे आते हैं। सो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन बी x किलोमीटर पर आवर, सो द टाइम टेकन टू कवर 1200 किलोमीटर वुड बी 1200 अपॉन x आवर्स, बिकॉज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज द न्यू स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज x माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। तो सेम वे में करना है, एग्जैक्टली सेम वे। तो यहां तक तो सारे स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है। ये थर्ड टाइम अपन कर रहे हैं, वो 1200 कैंसिल हो रहे हैं। इसमें एक चीज बड़ी है, वो है द नंबर्स। सो देखो, वी गॉट 144000, यस, 1,44,000, इट्स अ प्रिटी लार्ज नंबर। तो फिर भी देर आर लॉट ऑफ जीरोस, तो ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अपन को पता है कि भाई 4 मल्टीप्लाइड बाय 36 वुड बी 144, तो अपन वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। 400 एक में यूज किया, 360 एक में यूज किया, दोनों का डिफरेंस है 40x। अभी यहाँ पर देखोगे तो माइनस 40x है, इसलिए बड़े वाले का साइन माइनस है। सो एंड अप विद, इनमें कॉमन है x, सो वी गेट x टाइम्स x माइनस 400 प्लस 360 टाइम्स x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है x माइनस 400 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो या तो x है 400 या फिर x है 360। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x आ गया मेरा 400 किलोमीटर पर आवर। तो ओरिजिनल स्पीड है 400 किलोमीटर पर आवर। तो इतना बड़ा स्पीड प्लेन का ही हो सकता है, कार वार का तो होगा नहीं, ट्रेन का भी नहीं होगा। Quickly make a note of this so that we'll go ahead. Now in the next example, we have a car covering a distance of 400 kilometers at a certain speed. Had the speed been 12 kilometers more, the time taken for the journey would have been 1 hour 40 minutes less. अब ये थोड़ा सा पंगे वाला प्रॉब्लम होगा क्योंकि आवर्स भी और मिनट्स भी है। So find the original speed of the car. तो पहले तो x लेंगे, x is the original speed of the car, so you know time is equal to distance upon speed. This is an error here,
should be distance upon speed, typo error, and it is given that the car covers the distance of 400 kilometers with the speed of x kilometers per hour. Thus, the time taken by the car to complete 400 kilometers would be 400 upon x. Same way, new speed is x plus 12 kilometers per hour. So we'll get तो नेक्स्ट इसमें टाइम कितना आएगा, तो इट इज गोइंग टू बी 400 अपॉन x प्लस 12. तो अगर आप देखोगे तो पिछले 3 सवालों में भी एग्जैक्टली सेम किया था. यहाँ पर फर्क ये है कि इट इज 1 hour and 40 minutes. So it is 1 and 40 upon 60. So it is 1 and 2 by 3 और 5 by 3. तो बाकी की सारी चीज़ें तो एग्जैक्टली सेम ही रहेगी. ये देखो 400x और 400x आ गया प्लस 400x माइनस 400x, दैट गेट्स कैंसल्ड आउट. तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर एज 480 अपॉन x टाइम्स x प्लस 12 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया वी गेट 3 टाइम्स 480 इज इक्वल टू 5 टाइम्स x प्लस 12. और जब अपन ने मल्टीप्लाई आउट किया तो वी गेट 5x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 14400 इज इक्वल टू 0. ये नंबर 144 काफ़ी बार आता है बिकॉज इट इज़ मल्टीपल ऑफ क्वाइट अ बिट ऑफ नंबर्स. तो वो काफ़ी ज़्यादा के नंबरों के टेबल में आता है. वी कैन डिवाइड एवरीथिंग बाय 5 एंड गेट x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2880 इज इक्वल टू 0. दोनों में कॉमन क्या है, तो अभी मेरे को मल्टीप्लीकेशन चाहिए 12, तो आई कैन हैव इट एज 60 मल्टीप्लाइड बाय 48. अभी ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि सर इतना बड़ा नंबर आएगा तो करेंगे क्या, कैसे पता चलेगा कि रूट ये है. तो अगर आप इफ यू आर वेरी गुड एट फाइंडिंग दीज मल्टीप्लीकेशंस, गुड, डू इट विथ फैक्टराइजेशन. अगर नहीं हो रहा, सीधा सीधा फॉर्मूला मेथड यूज करना है. यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम आंसर. सो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 48x माइनस 2880 इज इक्वल टू 0. 60 कॉमन, इसमें x कॉमन निकला तो x प्लस 60 आ गया, और इसमें 48 कॉमन निकला तो x प्लस 60 आ गया. इट गेव मी x प्लस 60 टाइम्स x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 48 इज इक्वल टू 0. सो इधर x इज इक्वल टू माइनस 60 और x इज इक्वल टू 48. माइनस 60 को मुझे कैंसिल आउट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ नेगेटिव नंबर, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. सो मेरा स्पीड आ गया 48 किलोमीटर्स पर आवर. तो थोड़ा जेन्युइन स्पीड देखो कार का, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कार्स आर गोइंग टू बी रेगुलर कार्स. आगे देखेंगे नेक्स्ट, क्विकली मेक अ नोट ऑफ दिस, उसके बाद आगे जाएंगे अपन. Now, we have a girl who goes to her friend's house, which is at a distance of 12 kilometers. She covers half of the distance at a speed of x kilometers per hour and the remaining distance at the speed of x plus 2 kilometers per hour. If she takes 2 hours 30 minutes to cover the whole distance, find x. अभी ये जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड करके करने वाला सम है. तो पहले जो अब तक के सम थे वो काफ़ी सिमिलर थे, सिमिलर वे में सॉल्व हो रहे थे. ये थोड़ा सा अलग है. So we have time is equal to distance upon speed. So we can say that the first half she covers x upon 6 upon x. The second half she covers, second 6 kilometers she covers 6 upon x plus 2. Total journey कितना है मेरा 2 hour 30 minutes. So that is 230 upon 60. So that is 2.5. So that is 5 upon 2 hours. तो अभी क्या कर सकते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे टाइम्स को, तो it should be equal to 5 upon 2. So x plus 6 upon x plus 6 upon x plus 2 is equal to 5 upon 2. दोनों को ऐड कर दिया, we ended up with 6x plus 12 plus 6x is equal to x plus x times 2, x times x plus 2. अभी यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक प्लस साइन आ रहा है, जो इससे पहले माइनस आता था और वो दोनों कैंसिल आउट होते थे. यहाँ पर वो कैंसिल आउट नहीं होने वाले हैं. So we get x times x plus 2 is equal to 5 upon 2. So effectively we will get 12 plus 12x upon x square plus 2x is equal to 5 upon 2. So the answer we'll get is 24 plus 24x is equal to 5x square plus 10x, and we'll get 5x square minus 14x minus 24 is equal to 0. Now इसको अपन further factorize करेंगे तो it is 5 multiplied by 24. तो दैट इज 120. 120 के फैक्टर्स आ जाएंगे -20 एंड प्लस 6x.
तो दोनों को डाल दिया अपन ने इधर. We get 5x times x minus 4 plus 6 times x minus 4. So that is 5x plus 6 times x minus 4 is equal to 0. Or we get x is equal to minus 6 upon 5 or 4. तो ये वाले को discard कर देंगे because cannot be negative. So x is equal to 4 is our speed. अभी ये देखो लड़की वॉक कर रही है तो उसका स्पीड 4 के करीब 4-5 किलोमीटर के करीब होना चाहिए, 12-15-16 नहीं आना चाहिए. तो यूज योर ब्रेन. कई बार लोग कुछ मिस्टेक कर देंगे, बड़ा वाला आंसर आ जाएगा. आई लुक एट द आंसर एंड आई कैन से दैट इट इज इनकरेक्ट बिकॉज नहीं भाग सकते लोग. अ पर्सन कैन नॉट रन एट 25 और 30 किलोमीटर्स पर आवर. इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. 2-2.5 घंटा रन नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट थिंग वी हैव इज अ कार made a run of 390 kilometers in x hours. If the speed had been 4 kilometers per hour more, it would have taken 2 hours less for the journey. So we have speed again. वही वाला system फिर से use कर रहे हैं अपन. Speed is distance upon time. पर इससे पहले time is distance upon speed ले रहे थे. अभी speed is distance upon time लेंगे. So y is equal to 390 upon x. So x would be equal to 390 upon y. Now the new speed of the car is x plus 4. So the new time taken would be 390 upon y plus 4. Same way से किया. A final answer दोनों को subtract करना है because the time difference is 2 hours. Again cross multiply करके ही करना पड़ेगा. तो इसमें भी minus 390 और plus 390 आ जाएगा. We'll end up with cancelling things out and ये 2 को यहाँ से और यहाँ से कैंसिल कर दिया तो ये 780 आ जाता है. लाइफ गेट्स ईजियर. सो गेट y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 780 इज इक्वल टू 0 और y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 26y माइनस 780 इज इक्वल टू 0 और y टाइम्स, अभी इन दोनों में y कॉमन है तो इट इज y टाइम्स y प्लस 30 और इन दोनों में 26 कॉमन है. सो माइनस 26 कॉमन है. सो इट इज माइनस 26 टाइम्स y प्लस 30 इज इक्वल टू 0. सो वी एंड अप विथ getting the answer that y is equal to minus 30 or y is equal to plus 26. Now since the time cannot be negative, y is equal to minus 26. 30 plus 30 को अपन ने cancel out कर दिया. So we can write x is equal to 290 upon 26. So that is 15. और मेरा x time है, so मेरा x कितना है यहाँ पे, तो 15 hours है. So friends, that was all about solving quadratic equations upon speed, distance and time. I have included a small worksheet on this topic, on a rather combined topic in the description box. Please download it and solve it. In case you have any doubts, please contact us on the WhatsApp number that is given, or you can scan the QR code. This was Dr. Rishi from the Learners Academy. If you found this video interesting, subscribe to our channel, share this video with your friends, and like it. Thank you.